السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN اور میں ہوں ابراہیم پیر صاحب۔ میں ہوں انزلہ عرفان۔ بلیٹن میں ہمارے ساتھ ہوں گے عرفان بشیر بھی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ رہنما PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بلے کا نشان واپس لینے کے لیے منگل کو عدالت سے رجوع کریں گے، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ امید ہے کہ عدلیہ ہمارا بلے کا نشان بحال کرے گی۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی PTI نے ملاقات میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا کہا ہے۔ بلہ پاکستان کے 70% عوام کی نشانی ہے، الیکشن صاف اور شفاف نہ ہوئے تو ملک میں افراتفری پھیلے گی۔ یہ سب PTI کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے، سوائے ہمارے کسی کا بھی کرمنل ٹرائل اجلت میں نہیں ہو رہا۔ سائفر کیس کا ٹرائل غیر قانونی طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ ہم سارے سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، لیکن یہ فقط ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ کسی کو الیکشن پروسیس سے باہر نکالنا، الیکشن پروسیس کے قریب نہ آنے دینا یا اسے سیاست سے باہر کرنے کے لیے ایک سب سے بڑا سازش ہے۔ جس طریقے سے ہمارے ورکر، سپورٹر اور کینڈیڈیٹ سے ڈاکومنٹس لیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے ان کو روکا جا رہا ہے اور الیکشن پروسیس میں اجازت نہیں دی جا رہی۔ پاکستان تحریک انصاف اپنی شان سے الیکشن لڑے اور اس میں پارٹیسپیٹ کرے۔ یہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو یہ ملک کو افراتفری کی طرف لے کے جائے گا۔ پارٹی سے اس کا نشان روک لیتے ہیں اور وہ بھی ایک عام بیس لیس قسم کی بنیادوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج خان صاحب سے اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ ہم الیکشن کمیشن کے ڈیسیجن کو ہر فارم میں ڈسمس کرتے ہیں۔ اس ڈیسیجن کو ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ چیلنج کریں گے۔ ہمارا سارا سٹرگل جو ہے وہ اس سمبل کے لیے چلتا رہا ہے اور ان کی ساری کوشش یہی ہے کہ ہم سب سمبل لے لیں۔ ہم اگر عدالت جائیں گے انشاءاللہ تعالی ہمیں ریلیف ملے گا۔ ایک اور اہم خبر، سائفر کیس میں سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان اور سابق سفیر اسد مجید سمیت اہم گواہوں نے بیانات قلم بند کرا دیے۔ سیکریٹری وزارت داخلہ آفتاب احمد خان اور سابق سیکریٹری خارجہ سہیل محمود نے بھی اپنے بیانات قلم بند کرائے۔ بانی چیئرمین PTI، ان کی اہلیہ اور بہنیں شاہ محمود قریشی اور ان کے اہل خانہ کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی اوپن سماعت کی، جس میں اہم گواہوں اعظم خان اور اسد مجید نے اپنے بیانات قلم بند کروائے۔ اس موقع پر کمرہ عدالت میں سابق چیئرمین PTI، ان کی اہلیہ اور بہنیں شاہ محمود قریشی اور ان کے اہل خانہ بھی موجود تھے۔ سماعت کے دوران سیکریٹری وزارت داخلہ آفتاب احمد خان، سابق ایگزیکٹو میجسٹریٹ عوید ارشاد، اسسٹنٹ سائفر آپریشن نعمان اور سابق سیکریٹری خارجہ سہیل محمود نے بھی اپنے بیانات قلم بند کروائے۔ سماعت شروع ہونے سے قبل استغاثہ کے 22 گواہان اڈیالہ جیل پہنچے تھے، جن میں اعظم خان، سہیل محمود، اسد مجید، شمون عباس، آفتاب اکبر دورانی، عدنان ارشد، شجاعت افضل، جاوید، عبدالجبار، عبید ارشاد بھٹی، فیصل نیاز، نعمان اللہ، ساجد محمود اور محمد نعمان شامل ہیں۔ سائفر کیس میں 25 میں سے 2 گواہان پر جرح مکمل ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے تکنیکی بنیادوں پر ضمانت دی ہے۔ پروسیکیوشن کے وکیل شاہ خاور نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت عدلیہ نے احکامات نے واضح کیا ہے کہ ضمانت کا فیصلہ ٹرائل پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ نقول کی کاپی ملنے کے بعد ملزمان کے وکیل جرح کریں گے۔ ان کیمرہ ٹرائل کے متعلق کچھ بات ہو رہی ہے، اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی جو فیصلہ تھا وہ بھی یہی تھا، بلکہ جو سنگل جج کا فیصلہ تھا انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جہاں جہاں پہ آپ کو ضرورت ہوگی پبلک کو ایکسکلوڈ کرنے کی تو وہ اس سٹیج کے اوپر کورٹ جو ہے وہ ایکسکلوڈ۔ ابتدائی بیانات ہوئے ہیں تمام وٹنسز کے، وہ اس کی کاپیز لیں گے، اس پہ بھرپور تیاری کریں گے اور تیاری کے ساتھ جو وہ جرح کر سکیں گے کہ کون سے گواہان ہیں جن پہ جرح ہونی ہے، ان کی گواہی میں کوئی ایسی سینسیٹیوٹی انوالو ہے جس پہ کہ ہماری جو ہے وہ فوراً جو پالیسی ہے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے، تو اس پہ پھر کورٹ یا پروسیکیوشن یہ دیکھ سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو ضابطہ فوجداری ہے وہ بالکل ایک بات کلیئر کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو شہادت ہے وہ ملزمان کی موجودگی میں ریکارڈ کی جائے گی، کہ ان کا جو حق دفاع ہے اور ان کو جو جرح کرنے کا جو رائٹ ہے وہ محفوظ ہے۔ پہلے لاڈلا اب معصوم کہہ کر مسلط کیا جا رہا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ پاکستان کے عوام یہ اجازت نہیں دیں گے۔ رہنما نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ اس معصوم آدمی نے آئین توڑا، ملک کی سلامتی داؤ پر لگا دی، توشہ خانہ کے تحائف بیچ دیے اور یہ معصوم ہے۔ جب مرضی لاڈلا اور جب مرضی معصوم بنا دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ بھی ہو جائے، نواز شریف 8 فروری کو انتخابات میں حصہ ضرور لیں گے۔
बानी चेयरमैन पीटीआई ने जानबूझकर साइफर को मसला बनाया। साइफर लीक करने से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। साइफर को सियासी मकासद के लिए जलसे में लहराना तारीखी हक़ाइक़ हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी मुल्क से मसला है तो सफ़ीर को बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाता है। दुनिया को जाहिर किया गया कि अदम एतमाद में शामिल जमातें गद्दार हैं। इक़्तिदार के हुसूल के लिए कौम को भी गुमराह किया। क्या बड़ी जमात का मतलब है कि कानून का इत्तलाक नहीं होगा? और बानी चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना सज़ा मुअत्तली और आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में बानी और साबिक़ चेयरमैन पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबात से कबल मुझे नाअहल करना मेरे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की जानिब से बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में सज़ा के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी जाए। बानी और साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना सजा मुअत्तली और आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने जल्दबाजी का मुजाहरा करके मुझे 8 अगस्त को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत 5 साल के लिए नाअहल करार दिया, जबकि तहरीक इंसाफ को पार्टी निशान बल्ले से भी महरूम कर दिया गया। दरखास्त में कहा गया है कि इंतखाबात से कबल नाअहल करना मेरे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन हाई कोर्ट ने सिर्फ सजा मुअत्तल की, पूरा फैसला नहीं। हाई कोर्ट फैसले में गलती का इलेक्शन कमीशन ने फायदा उठाया और बानी पीटीआई की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की कि इंतखाबात करीब हैं, वो मुल्क के साबिक वजीर आजम हैं, मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट तोशाखाना केस में सजा पर मबनी फैसला मुअत्तल करे ताकि इंतखाबात में हिस्सा लिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की जानिब से पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा के फैसले के खिलाफ दरखास्त एतराज़ात आयद करते हुए वापस कर दी गई। एतराज में कहा गया है कि अपील के साथ मुंसलिक दस्तावेजात नामुकम्मल हैं। तमाम मुतालिका दस्तावेजात के हमरा अपील 6 जनवरी तक दायर की जा सकती है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की अडियाला जेल में अचानक तबीयत नासाज हो गई। जेल इंतज़ामिया ने चौधरी परवेज़ इलाही को रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया है। हॉस्पिटल में परवेज़ इलाही के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। और दूसरी जानिब साबिक वफाकी वज़ीर और रहनुमा पीटीआई मोनस इलाही का कहना है कि आज सारा दिन मेरी वालिदा को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए गए। इंतज़ामिया लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की तजियाँ उड़ाती रही। समाजी राबितों की वेबसाइट पर अपने पैगाम में उनका कहना था कि जब उनको गेट के अंदर जाने दिया तो साथ ही कागजात छीनने की कोशिश की गई। सुना है कि जिसके हक में फैसला हो वही लाडला होता है। साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत हुई थी। मलिक अहमद खान ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को भी मामले पर घसीटा गया। एक मुल्क के हुकाम पर इल्ज़ाम लगाए गए थे। पीटीआई को बंद लिफाफों से रग़बत है, चाहे बंद लिफाफे में 190 मिलियन पाउंड ही क्यों ना हो। कासिम खान सूरी ने भी सरबा मोहर लिफाफा लहराया था। जब साइफर केस पे मैंने वो जजमेंट सुनी तो मेरे जहन में चंद सवालात उठे, और वो बड़े ज़रूरी सवालात हैं कि ये बेल ऑर्डर पे जब आप एक डीपर एप्रिसिएशन रादर आई वुड से कि ये टेंटेटिव असेसमेंट तो किसी सूरत भी नहीं है जो मेरी नज़र में है, और मैंने ये समझा कि गालिबन वो जो ऑनरेबल जजेस की जजमेंट थी अब वो रिफ्लेक्शन दे रही थी समहाउ कि उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेजुडिस हो जाएगा ट्रायल। बहरहाल एनीवेज अगर वो ट्रायल प्रेजुडिस नहीं होता है इस जजमेंट के साथ और ये सिर्फ बेल की हद तक रहती है तो फिर भी कुछ बड़े मुनासिब सवालात जो हैं वो इसी बेल के मौके पे उठते हैं, जिसको बाहर लेकर जाना और मुख्तलिफ जलसों में उस खत के मुतल्लिक हकीकी आज़ादी गुलामी से निजात का बयानिया तश्कील देना, उसी खत की बुनियाद पर अपने मुल्क के सिपा सलार को अलेज करना कि ये सब उनके साथ मिलकर किया, ये डोनाल्ड लू और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, फिर उसमें इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल उसके अंदर मुलव्वस करना। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और बानी चेयरमैन पीटीआई के लाहौर से कागजात नामजदगी जमा। शहबाज शरीफ ने NA 242 कराची से भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मरियम नवाज लाहौर के 2 हलकों NA 119 और NA 120 से और हमजा शहबाज NA 118 से उम्मीदवार होंगे। जहांगीर तरीन लोधरा से इलेक्शन लड़ेंगे।
इंतखाबी दंगल में हिस्सा लेने के लिए बड़े बड़े सियासी रहनुमा मैदान में आ गए। नवाज शरीफ कौमी असम्बली के 2 हलकों NA 130 लाहौर और NA 15 मानसहरा से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के 3 और 1 सूबाई नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। वो NA 123 लाहौर, NA 132 कोट राधा किशन और कराची के हलके NA 242 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। MK पाकिस्तान के मुस्तफा कमाल और पीपल्स पार्टी के कादिर मंदुखेल भी इस हलके से कागजात जमा करा चुके हैं। बानी चेयरमैन PTI के लाहौर के हलके NA 122 से भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। साबिक चेयरमैन PTI के वकील राय मोहम्मद अली ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। PTI की गिरफ्तार रहनुमा आलिया हमजा के वकील ने आलिया हमजा के मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करवाए। सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना इम्तियाज डार ने NA 71 के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी के कागजात नामजदगी भी वसूल कर लिए गए। जावेद हाशमी की वकला टीम ने NA 149 से कागजात नामजदगी हासिल किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर के हल्का NA 128 और लाड़काना के हल्का NA 194 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कौमी असम्बली के हल्का 207 नवाब शाह से उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज ने NA 119 और NA 120 लाहौर से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मरियम नवाज पंजाब असम्बली के 3 हल्कों PP 160, PP 159 और PP 165 से भी उम्मीदवार होंगी। हमजा शहबाज NA 118 से इलेक्शन लड़ेंगे। अहम खबर, IMF ने कर्ज कोटे की इस्लाहात मंजूर कर ली हैं। पाकिस्तान इन इस्लाहात से फ़ायदा उठाते हुए अगले प्रोग्राम में 6 से 9 अरब डॉलर्स तक कर्जा ले सकता है। उधर पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर्स की दूसरी किस्त जनवरी के शुरू में मिलने का इम्कान है। IMF की कर्ज कोटे से मुतल्लिक इस्लाहात मंजूर। पाकिस्तान 6 से 9 अरब डॉलर तक कर्ज ले सकेगा। IMF के अलामिये के मुताबिक इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने कर्ज के कोटे से मुतल्लिक इस्लाहात मंजूर कर ली हैं। गुज़श्ता माह तजवीज़ की गई इस्लाहात को दिसंबर के वस्त में IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मंजूर कर लिया है। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है कि कर्ज के कोटे में इजाफे से पाकिस्तान को भी फायदा हो सकता है। कर्ज के लिए कोटा बढ़ जाने से पाकिस्तान अगले प्रोग्राम में फायदा उठा सकता है। पाकिस्तान कोटा बढ़ने से 6 से 9 अरब डॉलर का कर्ज ले सकता है। पाकिस्तान मौजूदा कर्ज प्रोग्राम में तोसी नहीं कराएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की 71 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त का स्टॉक लेवल मादा तय पा चुका है। IMF बोर्ड जनवरी में कर्ज देने की मंजूरी देगा। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद स्टेट बैंक के अकाउंट में 71 करोड़ डॉलर की रकम ट्रांसफर की जाएगी। और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि लाहौर समेत दीगर शहरों में भी हॉस्पिटल्स का काम हो रहा है। सर्विसेज हॉस्पिटल में तेजी से काम जारी है। मुल्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया गया है, जबकि PIC में लैब कलेक्शन सेंटर बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। काम हो रहा है लाहौर में भी, लाहौर से बाहर भी। इंशाअल्लाह ताला अगले चंद दिनों में हम मुल्तान का जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है वो हमने केयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, चाइल्ड लाइफ के साथ मिलकर हमने उसकी एमरजेंसी को रीवैम्प किया है और वो स्टेट ऑफ द आर्ट एमरजेंसी बनी है। तो सर्विसेज में इस टाइम 1000 के करीब बंदा काम कर रहा है। कल रात से एक मिनिस्टर और वहाँ पे समझें 24 घंटे वहाँ पे डिप्लॉय हो जाएंगे। CNW ऑलरेडी काम कर रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहा है। PIC एमरजेंसी हमारी कोशिश है कि हम 31 को कंप्लीट कर दें। लेबॉर्ट्री का जो कलेक्शन सेंटर है वो बनाएं ताकि वो अपना रेवेन्यू भी वहाँ से जनरेट कर सके। वो भी हम डिजाइन उसका फाइनल करके आए हैं। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही को तिब्बी मुआयने के बाद अडियाला जेल रवाना कर दिया गया है। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में परवेज इलाही का तफसीली तिब्बी मुआयना किया गया है। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही के सीने में इन्फेक्शन की तशखीस हुई है। इसी बारे में बात करते हैं। फैज़ सईद हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी फैज़ बताइए इस बारे में, कैसी तबीयत है उनकी? फैज़ सईद से हम अपना राब्ता दोबारा बहाल करेंगे। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही को तिब्बी मुआयने के बाद दोबारा अडियाला जेल रवाना कर दिया गया है। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में उनका तफसीली तिब्बी मुआयना किया गया था।